बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप लोग ठीक हैं। आज के लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ सॉर्टिंग इन लीनियर टाइम। लेट्स टॉक अबाउट द आउटलाइन ऑफ टुडेज लेक्चर. First, we will talk about the chapter overview, and the chapter name is sorting in linear time. Then we will talk about the lower bounds for sorting, specifically with respect to comparison sorts, जो कि अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं. So we have to determine what exactly is the least timing required for comparison sorting, and then we will talk about different games to a different game to further minimize this time. और उसके बाद हम दो अलगारिदम जो है वो डिस्कस करेंगे जिनका रनिंग टाइम जो है वो बेसिकली लीनियर है. So the first one is called the counting sort. As its name suggests, it would be counting instead of comparing the values, different values. So we talk about the concept, then the pseudocode, then an example, and then its analysis. And then we will extend this counting sort towards a multi-dimensional data, और मल्टी डायमेंशनल डेटा के ऊपर जो अलगारिदम काम करता है वी कॉल दैट रेडिक्स सॉर्ट. सो हम उसके फिर कॉन्सेप्ट सॉर्ट कोड एग्जांपल और एनालिसिस को डिस्कस करते हैं. देन वी विल बी हैविंग अ सिंपल असाइनमेंट. To talk about chapter overview, if we look in here, let me have the pointer so I can easily point to the point that I'm discussing. How fast can we sort? So our purpose or goal in this chapter initially would be that we will prove what a lower bound for the existing comparison sorts is, right? And then we will play a different game. It means that we will not utilize comparison sorts because we're going to shortly see that whenever we use the comparison sort, so its minimum time is big omega of n log of n time. So it's definitely more than linear time. So if we have to improve it, so improvement should be in terms of linear function, and that is not possible with respect to comparison because you're going to see it shortly. So here we will talk about, as you can see in here, the comparison sorting. The only operation that may be used to gain ordered information about a sequence is comparison of pairs of elements, and this is about comparison sorts, right? So comparison sorts में हमारे पास एक ही algorithm, एक ही जो activity है या एक ही operation जो है वो basically हम utilize करते हैं to know the order information. और अभी तक हम जितने भी कंपैरिजन सॉर्ट्स जो है वो डिस्कस कर चुके हैं. देयर आर क्वाइट अ फ्यू मोर एज वेल. मेरे ख्याल में हम 3 या 4 यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं. इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन तो नहीं डिस्कस किया, बट you might have covered it in data structure as well. Then we had the merge sort. हमने heap sort को डिस्कस किया. Quick sort is a similar one as well, and similarly there is a tree sort as well. तो जितने भी हैं, even there are quite a few more like the bubble sort and many other as well. So there are even more than 2 dozens of algorithms for sorting purposes. So यहाँ पे जो भी है हर एक में एक मेन लूप होता है और उसमें हम एट अ टाइम जो है वो वैल्यूज जो है वो कंपेयर करते हैं और फिर उसी के ऊपर ही हम डिसीजन लेते हैं. ठीक है. लोअर बाउंड फॉर सॉर्टिंग की अगर हम बात करें, सो व्हाट आर बेसिकली द लोअर बाउंड. सो what we need to do is the whole input is n, so we have to examine the n elements which are given as an input, right? So that's why we could say what is the minimum bound for examining all the inputs. So we're going to say it's big omega of n. अभी तक जितने भी sorts we have seen so far, इसका जो मिनिमम है, जो लोअर बाउंड है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अपर बाउंड, क्योंकि इंसर्शन सॉर्ट जो है यू कुड सी कि इंसर्शन सॉर्ट जो है इट्स बेसिकली इन स्क्वायर टाइम. सो बट दिस द वर्स्ट केस रनिंग टाइम. वन एक्सेप्शन इन हियर, जो इंसर्शन सॉर्ट का बेस्ट केस है, लेकिन
दैट इज़ ओनली फॉर वन स्पेशल केस। तो हम जनरल बात करते हैं कि नॉर्मली आपके पास एवरेज वैल्यूज़ के लिए जो है उसका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है या मिनिमम जो टाइमिंग है वो कितना रिक्वायर्ड है, सो दैट इज़ n log of n टाइम। So we will show that big omega of n log of n is a lower bound for comparison sorts, and how we do it? We do it by using an abstraction of any comparison sorts, because the same operation of comparison is used to basically know कि दो values में से कौन सी value जो है वो बड़ी है और कौन सी जो है वो छोटी है। So this abstraction is performed in terms of a decision tree, and decision tree ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन है आपके पास नॉर्मली एक कंडीशन पे बेस, और कंडीशन के दो वेरिएशंस होते हैं, एक ट्रू होता है एक फॉल्स होता है। तो जब भी आप किसी भी लॉजिकल ऑपरेशन को यूज़ करते हैं तो एक जो है तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से स्मॉल हो सकती है, उससे बड़ी हो सकती है, या वो उसके इक्वल हो सकती है। तो नॉर्मली हम लेस और इक्वल या ग्रेटर और इक्वल इनको कंबाइन कर लेते हैं, वी मेक इट अ ट्रू और अ फॉल्स केस। और जो अल्टरनेट जो चॉइस होता है, अगर हम ये कह दें कि जी लेस देन और इक्वल का हम ऑपरेटर जो है वो यूज़ कर रहे हैं, so actually if the value is greater than, so that the false case is basically covering the third possibility as well. So decision tree जो है it will basically give us an abstraction of any comparison sort, and this basically represent the comparisons made by, so एक decision tree जो है ये सारे के सारे जो comparisons होते हैं, और ultimately at the root जो है वो आपको वो possible जो sequences हो सकते हैं, possible permutations हो सकते हैं एक number of elements के लिए, वो आपके पास जो है as a leaf nodes जो है वो produce हो जाएंगे। So basically, decision trees represent what? It represents the comparison made by one by a specific sorting algorithm. So इसका मतलब ये है कि decision tree जो है वो एक sorting algorithm के लिए specific algorithm के लिए बनेगी, और हर एक different input size के लिए जो है वो means एक specific algorithm along with the given input जो है आपके पास एक decision tree बनेगी। So अगर साइज जो है वो इनपुट का इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है तो आपके पास एक और ट्री बनेगी। सो एवरी पॉसिबल इनपुट फॉर अ स्पेसिफिक एग्जांपल जो है आपके पास एक ट्री बनती है, ठीक है जी। सो दिस abstracts away everything else like the control and data movement, because we are not concerned with them. Those are not the covering the majority of the computation in this case, right? So the majority of the basic primitive operation which is used quite a lot in these comparisons is basically the comparison. So that's why what we do is that we have to concentrate on counting only the comparisons in these cases, right? As I said, decision tree जो है वो बनती है एक specific example, एक specific algorithm के specific number of input elements के लिए। So यहाँ पे एक example जो है वो हमारे पास given है, insertion sort जो है वो हमारा algorithm है, और उसमें 3 elements हमें given है। ये जो आपको यहाँ nodes के अंदर जो labels नज़र आते हैं 1 colon 2 2 colon 3, ये जो है ये basically indices हैं। If you look in here, each internal node is labeled by the indices of array elements from their original position. So आपके पास 3 elements हैं, so 1 2 and 3, these are the basic indices जो कि आपको array A में provided होते हैं, ठीक है जी। और जैसे मैंने कहा है कि आपके पास यहाँ पे क्या है, अगर आप यहाँ इस केस में देखें, हमारा अगर इंसर्शन सॉर्ट में देखें तो हम ये कहते हैं कि दिस वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू, इफ दैट्स अ ट्रू केस, सो getting a value the left value greater than the right value of the condition जो है that's the false case, right? तो अगर दोनों केसेस में आपके पास 1 और 2 को आप देखते हैं कि ए एरे के अंदर जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट है इट डज मेंटेन दिस इनइक्वालिटी कि ए वन की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू 2 है, so then you have to check second value with the third value. If second value is less than or equal to the third value as well, तो आपके पास जो है वो उसका जो परमुटेशन बनता है वो 1 2 और 3 बनता है, ठीक है जी। सिमिलरली अगर 1 और 2 के दरमियान जो है आप ये कहते हैं कि 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, देन यू मूव ऑन टू 2 3, सो 2 और 3 आप कहते हैं कि 2 लोकेशन पे जो वैल्यू है वो क्या है, वो ग्रेटर है, इफ एज यू सी इन हियर, राइट। तो उसके बाद देन यू हैव टू
explicitly find out the relationship between 1 and 3 as well. So अगर 1 और 3 जो है, अगर 1 की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू 3 है, तो आपके पास क्या है, आपके पास जो है, आपके पास ये वाला कंडीशन 1 3 और 2, ये आपके पास ये वाला परमुटेशन जो है वो आपके पास अचीव हो जाएगा। ठीक है जी। सो इसलिए ये आपके पास लीफ नोड्स हैं, अगर आप यहाँ पे देखें। सो 1 2 3 4 5 6 आपके लीफ नोड्स हैं, और हर एक लीफ नोड जो है वो किस चीज़ से हमने लेबल किया हुआ है, दैट इज बेसिकली द परमुटेशन of orders that the algorithm determines. So आप जब ये algorithm को insertion sort को 3 elements देंगे, तो वो इनमें से किसी एक बात को जो है वो फॉलो कर रहा होगा, और फिर वो आपको आउटपुट जो है वो जनरेट करके दे रहा होगा। तो यहाँ अगर आप देखें तो बेसिकली हमारे पास वो सारे के सारे पॉसिबल ट्रेसेस जो है वो हम शो कर रहे हैं कि बेसिकली किस बात को जो है हमने फॉलो करना है। अगर कंडीशन दोनों केस में जो है वो ये लेस देन और इक्वल ट्रू और ट्रू होता है, तो आप इसको फॉलो करते हैं। अगर एक बार ये ट्रू होता है, फिर फॉल्स होता है और फिर ट्रू होता है, तो फिर आप इस वाले पाथ को फॉलो करते हैं, यू गेट दिस वन। अगर आपके पास फर्स्ट वाला कंडीशन ट्रू और फिर ये ग्रेटर और ग्रेटर ट्रू होता है, तो देन यू हैव टू फॉलो दिस ट्रेस। और यहाँ सिचुएशन में आपके पास क्या है कि आपके पास जो है वो 1 3 और 1 2 और 3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है जी। सो ये हमारे पास जो है ये डिटरमाइन कर रहे होते हैं कि बेसिकली पॉसिबिलिटीज जो है वो क्या है। सो डिसीजन ट्री जो है वो बेसिकली जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, इट्स एन एब्स्ट्रैक्शन व्हिच बेसिकली शोज अस व्हाट बेसिकली वी कुड हैव व्हाइल वी एग्जीक्यूट एन एल्गोरिथम, राइट। सो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज जो हैं वो हो सकती है, ये वो सारे पॉसिबिलिटीज जो है वो शो कर रहे हैं। How many leaves on a decision tree? So as I said, this would be greater than or equal to n factorial leaves. So n factorial is basically the formula which determines the number of permutations. अगर आपके पास n elements हैं, तो n factorials जो है वो basically आपको क्या provide करते हैं, वो आपको permutations provide करते हैं कि कितने आपके पास possible orders जो हैं वो हो सकते हैं। ठीक है जी। So there are greater than or equal to n factorial leaves because every permutation appears at least once. So that's why we could have a minimum of n possibilities. For any comparison sorts, किसी भी comparison sort को आप देख लें, यहाँ example हमने insertion sort का भी use किया है। आपके पास एक ट्री बनेगी for each n। आप जो भी इनपुट साइज n देंगे उसके अगेंस्ट जो है उस एल्गोरिथम के लिए जो है आपके पास एक सेपरेट ट्री बनेगी। View the tree as if the algorithm splits in two at each node, and that's what I said. कंडीशन ट्रू है तो आपके पास एक पॉसिबल ऑप्शन आता है, कंडीशन फॉल्स है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है, एंड इट कवर्स ऑल द थ्री केसेस कि दो वैल्यूज जो हैं वो सेम है या फर्स्ट वैल्यू दूसरे से लेस है या उससे ग्रेटर है। ठीक है जी। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इट हैज डिटरमाइंड अप टू दैट पॉइंट एज वेल। सो उस जो पॉइंट है हमारे पास हर एक ट्री जो है उसको हम इस तरह से देखते हैं कि एल्गोरिथम जो है वो हर एक नोड जो है उसको आपके इनपुट को जो है उसको टू में जो है वो स्प्लिट कर रहा होता है। ठीक है जी। और वो किस चीज़ पे होता है, वो उस इंफॉर्मेशन पे बेस होता है जो हमने अभी तक जो है वो अचीव किए होते हैं। द ट्री मॉडल्स ऑल पॉसिबल एग्जीक्यूशन ट्रेसेस। सो अगर आप यहाँ पे देखें, दैट्स व्हाट आई सेड कि आपके पास वो सारे के सारे पॉसिबिलिटीज जो एक एल्गोरिथम ले सकता है वो आपको शो कर रहा होता है। ठीक है जी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू अ लीफ? That definitely depends on the algorithm. अगर आप इंसर्शन सॉर्ट की बात करें तो हमने कहा था कि it takes n square, और अगर हम मर्ज सॉर्ट की बात करें तो it takes what? It takes n log of n time. So अभी हमने ये देखा कि जी हमारे पास क्या था, n log of n was for the merge sort and n square was basically which is even more than n log of n for the insertion sort. ठीक है। and the same is the case with the heap sort as well. heap sort का जो टाइम है वो भी n log of n ही है। सो इसलिए हमारे पास ये सारे टाइमिंग्स जो हैं ये n log of n ही है। तो हमारे पास जो भी कंपैरिजन सॉर्ट्स हैं वहाँ पे हमारे पास जो मिनिमम हमारा एग्जीक्यूशन टाइम है दैट इज बिग ओमेगा ऑफ n log of n, राइट। So now we will move on towards the sorting in linear time, and we see what exactly which kind of game we have to play for getting the sorting done in linear time. So in counting sort, uh, this is basically a sorting mechanism which sorts the values in linear time,
and it's mentioned here that this is non-comparison sorts. So the first non-comparison sort in here is called the counting sort, but it has a key assumption. यहाँ पे एक की assumption है हमारे पास कि आपके पास जो numbers हैं, जो input values हैं, जो n input होता है जिसको आपने sort करना होता है, वो 0 से लेके k के दरमियान k के range में होना चाहिए. So this thing is an assumption, and this thing is in a sense a restriction on the number of values as well. कि क्यों k की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा बड़ी है तो फिर शायद हम इसको प्रेफर नहीं करते. ठीक है. So अगर वैल्यूज़ जो हैं वो एक शॉर्ट रेंज में एग्जिस्ट करते हैं, suppose like 10 to 15 10 values or 5 values or 8 values or the values like them. So 0 to k के रेंज में अगर वैल्यूज़ हैं तो हम तब जो है इसको जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. ठीक है जी. और वो हम देख लेंगे कि ये k की वैल्यू जो है वो इतनी बड़ी जो है वो नहीं है. सपोज अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो मोस्टली जो डिजिट्स होते हैं वो जो हैं वो लाई करते हैं बिटवीन 0 to 9, लेकिन this could be even more than 9 values as well. So but the value or the range should be smaller, not a very huge one. इनपुट आपके पास क्या होगा, एक एरे, जिस तरीके से बाकी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में है, यहाँ पर भी आपको एरे ए गिवन होगा और उसमें n एलिमेंट्स होंगे, और जहाँ पर आपके पास a ऑफ j की जो वैल्यूज़ है, मींस जो इनपुट वैल्यूज़ हैं वो क्या है, वो 0 और k के रेंज में है फॉर j इज इक्वल टू 1 to n. ठीक है. सो आपके पास क्या है, 1 to n इसका रेंज है, ये j जो है वो इसका इंडेक्स वेरिएबल है, तो a ऑफ j जो है वो क्या होना चाहिए, जिस तरह हमने ये असम्पशन लिया है कि वो 0 और k के दरमियान होना चाहिए. सो एरे a एंड वैल्यूज n and k आर गिवन एज पैरामीटर्स. अभी हम एल्गोरिथम देखेंगे कि हमें एरे a और साथ में n is basically the size of input values and k is basically the maximum value that you do have, जो कि आपके इनपुट के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी. ठीक है जी. सो दिस इज इनपुट. एक एरे ए इनपुट आपको गिवन होता है, उसमें n एलिमेंट्स होते हैं. आउटपुट क्या है, आउटपुट जो है डेफिनेटली आपके पास जो है वो n एलिमेंट्स इनपुट गिवन है, तो आपने n वैल्यूज़ को ही जो है वो सॉर्ट करना है. लेकिन यहाँ पर a मेंशन है और यहाँ पे b मेंशन है. इसका मतलब ये है कि जो इनपुट है वो एक सेपरेट एरे में, वो एक एरे में गिवन है, और आपका आउटपुट जो है वो दूसरे एरे b में जो है वो जनरेट होगा. और डेफिनेटली हमारा सॉर्टिंग, हमारा जो कंसर्न है इस एल्गोरिथम का वो सॉर्टिंग है, तो जो बी एरे में जो इनपुट आएगा वो सॉर्टेड फॉर्म में आएगा. ठीक है जी. बी इज assumed to be already allocated and is given as a parameter as well. तो जिस तरीके से हम a, n और k की वैल्यू जो है असाइन कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, इस तरीके से हम बी एरे जो है वो भी हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो भी एलोकेटेड है, वो भी ऑलरेडी जो है वो मेमोरी में प्रेजेंट है, और वो भी एज ए पैरामीटर हमने प्रोड्यूस किया है. सो इनपुट जो है वो एरे ए के फॉर्म में, आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस होगा एरे बी के फॉर्म में, और हमारे पास एक टेम्पररी एरे यूज होगा 0 से लेके k के दरमियान. ठीक है. 0 से k रेंज का एक और टेम्पररी एरे जो है हम यूज करेंगे, जिसको हम C एरे कहते हैं, और ये C जो है दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर अकाउंटिंग एज वेल, राइट. सो इसको हम ऑक्सिलरी स्टोरेज इसलिए कहते हैं क्योंकि हम टेम्पररी यूटिलाइज करेंगे once the algorithm is over, so we don't need it after that, right. और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वही रेंज है जो कि यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि आपके पास इंटीजर जो है वो किस रेंज में होने चाहिए एरे ए में जो प्रोड्यूस होते हैं या प्रोवाइडेड होते हैं. ठीक है जी. तो यहाँ पर आपके पास क्या है, आपके पास जो है जो एरे सी है टेम्पररी स्टोरेज, वो उसका जो रेंज है वो 0 से k के दरमियान है. ठीक है जी. So on the left hand side is the algorithm. जैसे मैंने कहा कि A और B, एरे A जिसमें आपका इनपुट है, एरे B जिसमें आपका आउटपुट जनरेट होना है, n is basically the size of A and B and k is basically the maximum value और the maximum integer value जो कि हमारे पास यहाँ पे है. एक चीज़ देखें, यहाँ आपके पास है कि एक तो यहाँ पे वैल्यूज इंटीजर होने चाहिए. So वो इसलिए इंटीजर होने चाहिए जो आपके पास वैल्यूज हैं, क्योंकि आपके पास जो एरे सी हम लेंगे तो उसके ये जो वैल्यूज़ हैं आपके पास 0 और k के रेंज में एज एन इनपुट जो आपको प्रोवाइड होते हैं, वो इसलिए इंटीजर होने चाहिए क्योंकि वही वैल्यूज़
का जो रेंज है 0 to k उसे हम सी का इंडेक्स यूज सी के सी एरे जो एक्सिलरी एरे सी है उसके एज इंडेक्स जो है वो हम यूज करते हैं। और इंडेक्स एरे का इंडेक्स जो है वो इंटीजर हो सकता है, वो फ्लोट वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अच्छा काउंटिंग सॉर्ट जो है उसका बेसिक कंसर्न जो है वो क्या है, काउंटिंग सॉर्ट मींस कि आपने इंस्टेड ऑफ कंपैरिजन जो है वो यहाँ पे काउंटिंग करनी है। अब काउंटिंग जो है वो किस तरीके से करनी है, और काउंटिंग में जो है वो फर्स्ट ये बात आ सकती है कि हर एक वैल्यू कितने टाइम रिपीट हो सकती है, क्योंकि हमारे पास देयर कुड बी अ वैल्यू रिपीटेड वैल्यूज एज वेल। आपके पास इवन सारे के सारे जो इनपुट एलिमेंट्स हैं वो सारे भी जो है वो एक वैल्यू हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपके पास क्या है, आपके पास एक वैल्यू भी हो सकती है, कोई वैल्यू मिसिंग भी हो सकती है, और इस तरीके से आपके पास जो है वो रिपीटेड वैल्यूज भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे 4 डिफरेंट किस्म के जो फॉर लूप्स है वो हम यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, i इज इक्वल टू 0 to k, ये 0 to k रेंज है आपके ऑक्सिलरी स्टोरेज सी का। तो हम क्या कर रहे हैं, इनिशियली चूँकि हमने काउंटिंग करनी है और हमने ये देखना है कि 0 कितने टाइम है, 1 कितने टाइम है, 2 कितने टाइम है, अप टू k। तो जो k 0 से k तक जो वैल्यूज़ हैं, हमने सबसे पहले ये काउंट करना है कि वो वैल्यूज़ कितने टाइम जो है, या वो कितनी वैल्यूज़ जो हैं वो हर एक वैल्यू जो है वो कितने टाइम जो है वो रिपीट हो रही है। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, उससे पहले हमने एरे सी को जो वैल्यूज़ हैं उसको हमने 0 असाइन कर देने हैं। ठीक है जी। सो एरे सी जो है उसके सारे जितने भी मेमोरी लोकेशंस हैं सब में जो है वो हम सी को असाइन कर रहे हैं। ठीक है, इनिशियलाइज कर रहे हैं। सो ये जो फर्स्ट लूप है वो क्या कर रहा है, 0 to k जितने भी जो आपने आई का एक लूप चलाना है 0 to k, और सी आई मीन्स 0 to k लोकेशंस को जो है वो आपने 0 को असाइन कर देना है। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास जो एरे ए है, एरे ए जो है वो 1 to n उसका इंडेक्स है, तो हमने जे का एक इंडेक्स वेरिएबल लिया है। जो फॉर लूप है वो 1 to n चल रहा है, और हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि एरे ए की जो वैल्यू है ए ऑफ जे, क्योंकि ए ऑफ जे जो है ये सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल है, जे जो है वो बेसिकली इंडेक्स वेरिएबल है, तो इनिशियली उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ए ऑफ 1 की वैल्यू जो है वो आप एरे ए में जाएंगे और उसके फर्स्ट लोकेशन की जो वैल्यू है आप उसको उठाएंगे, और वो वैल्यू चूंकि एरे ए की जो वैल्यू है वो बेसिकली आपको सी का इंडेक्स दे रहा है, तो सी का इंडेक्स उसका ए की वैल्यू के लिए जो करस्पॉन्डिंग सी का इंडेक्स है, आप वहां से वैल्यू को उठा लें और उसमें 1 प्लस कर दें। 1 प्लस इसलिए कर दें क्योंकि मुझे ए ऑफ जे की एक वैल्यू मिली है जो कि सी ऑफ जे पे अपडेट होनी चाहिए कि मेरे पास ये वैल्यू जो है ये मेरे पास आ चुकी है। ठीक है जी। इसका एग्जांपल चलो एग्जांपल जो है वो हम आगे जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्या कर लेगा, ये इस तरीके से फर्स्ट वैल्यू ए ऑफ फर्स्ट की जो वैल्यू है, फिर ए ऑफ 2 की जो वैल्यू है, ए ऑफ 3 की जो वैल्यू है, तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे कि जो जो वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल है वो वैल्यू जो है वो वहाँ पे किस वैल्यू को प्लेस कर देगा कि जी कौन सी वैल्यू जो है वो कितने कितने टाइम जो है वो वहाँ पे अवेलेबल है। तो ये वाले इस वाली लूप का कंसर्न क्या है, इस वाली लूप का काम क्या है, इस वाली लूप का काम ये है कि हम ऑक्सिलरी स्टोरेज सी के अंदर जो है ये इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर लें कि हर एक वैल्यू जो है वो एरे ए के अंदर जो है वो कितने टाइम जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसको एग्जांपल से भी जो है वो परफॉर्म कर लेंगे। और उसके बाद हमने फिर क्या करना है, उसके बाद हम फिर ये देखते हैं फॉर i इज इक्वल टू 1 to k। अब ये 1 to k और 0 to k ये बेसिकली इंडेक्सेस हैं आपके सी के। वहाँ पे हम 0 to k ले रहे थे, यहाँ पे हम 1 to k ले रहे हैं। 1 to k इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम 1 से जो प्रीवियस वैल्यू है उसको 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, इस तरीके से जो है वो क्या कर रहे हैं उसको हम ऐड करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम ये लूप हमें ये बता के देगा कि एक इंडेक्स लोकेशन के की जो वैल्यू है तो वो उससे स्मॉलर और उसके इक्वल कितने टाइम वो वैल्यू जो है वो इस एरे ए के अंदर जो है वो रिजाइड करती है। पिछले वाले लूप ने ये डिटरमाइन किया कि एरे ए के अंदर हर एक वैल्यू जो है वो कितने टाइम एग्जिस्ट करती है, और वो वैल्यू हमने सी में प्लेस कर दिया है। अब सी आई पे बेस जो है वो हमने ये डिटरमाइन करना है कि आपके पास जो है जिस तरह इनिशियली आपके पास 1 है,
तो हम ये देखेंगे, और यहाँ सी का जो एरे है वो 0 to k तक चल रहा है, तो 0 और k क्यों, क्योंकि ये i इक्वल टू 1 है, तो 1 माइनस 1 जो है ये 0 हो जाएगा। तो C1 और C0 को आप मिला के C1 में उसकी वैल्यू जो है उसको प्लेस करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि C1 में आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी के आपके पास 1 और 1 से स्मॉलर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। फिर 2 में आपके पास सी के 2 लोकेशन पे आपके पास जब ये कंप्लीट होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी कि 2 और 2 से स्मॉलर कितने वैल्यूज जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। फिर 3 और 3 से स्मॉलर, फिर 4 and 4 से स्मॉलर, एंड सो on. So once I'm done with this one, I will utilize this uh, final state of C in deciding the actual place in array B for a value given in array A. मैं क्या कह रहा हूँ, अब हमने array A में से values को लेना है। ये final loop जो है this is basically used for placing the values in the output array जो कि आपके पास B है। तो ये j is equal to n down to 1 हम क्या कर रहे हैं, हमें जो array given होगा तो हमने last value से जो है वो start करना है। और अभी हम देखेंगे कि वो last value से जो है वो हम start क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो हमें एक बड़ा important property देता है जिसको हम stability कहते हैं एक अलगारिदम का। उसको हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। हमने यहाँ पे करना क्या है कि a ऑफ j की वैल्यू आप लेंगे। सपोज आपके पास j की वैल्यू जो है वो क्या है, वो n से स्टार्ट हो जाएगी। सो आप यहाँ पे कहेंगे कि जी मेरे पास a ऑफ n की जो वैल्यू है वो क्या है, उस वैल्यू को मैंने प्लेस करना है b के एक ऐसे इंडेक्स लोकेशन पे जो मुझे c ऑफ a ऑफ j प्रोवाइड कर रहा होगा। तो a ऑफ n की सपोज मैं एग्जांपल यहाँ से a ऑफ n की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी, तो मैं कहूँगा कि ये 3 की वैल्यू कहाँ पे प्लेस करनी है, तो ये 3 हो जाएगा, तो c ऑफ 3, तो c ऑफ 3 पे आप जाएंगे और वहाँ से आप जो है वो वैल्यू उठा लें और वहाँ उस वैल्यू जो है वो आपको b का इंडेक्स दे देगा जो कि इस a ऑफ j का एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो होना चाहिए। ठीक है जी, सो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू इन हियर। इसका एग्जांपल जो है वो ये, अच्छा, और इसके बाद हमने क्या करना है कि जो c ऑफ a ऑफ j की वैल्यू है a ऑफ j पे बेस जो एक्सिलरी स्टोरेज की जो वैल्यू है उसको बाय 1 आपने डिक्रीमेंट कर देना है। डिक्रीमेंट इसलिए कर देना है कि अगर आप इसको डिक्रीमेंट ना करें तो वो पॉसिबिलिटी आपके पास है कि वो वैल्यू जो है वो नेक्स्ट टाइम फिर आपके पास जो है वो ओवरराइट हो जाए। ठीक है, सो आपने उस वैल्यू को जो है वो क्या करना है, उसको जो है वो डिक्रीमेंट कर देना है। इसको इन्होंने कहा है कि डू एन एग्जांपल फॉर a इज इक्वल टू 2 5 3 0 2 3 0 और 3। तो ये वैल्यूज यहाँ पे मैंने इसी एग्जांपल को लिया है, दिस इज 2 5 3 0 2 3 0 2। इसके साथ इसका मतलब ये है कि द फर्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ 1, the first existence of 5, the first existence of 3, first existence of 1, then the second existence, it means कि this is the second 2, यहाँ पे 2 जो है वो रिपीट हो गया है। इस तरीके से 3 जो है वो रिपीट हो रहा है, 0 जो है वो रिपीट हो रहा है, सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है, और 3 जो है वो क्या है, वो थर्ड टाइम रिपीट हो रहा है। सो इसका मतलब ये है कि ये 3 टाइम्स, 3 आपके पास 3 टाइम है, 0 आपके पास 2 टाइम है, 2 आपके पास जो है वो क्या है, वो 2 टाइम्स है, और 5 जो है वो आपके पास क्या है, वो 1 टाइम है। ठीक है जी, सो हम इस एग्जांपल को यहाँ पे जो है वो 1 बाय 1 जो है वो प्रोसेस कर लेते हैं इस सूडो कोड को जो है वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए। ठीक है जी, ए हमें गिवन है, बी में हमने प्रोसेस करना है, एन हमें गिवन है कि वो क्या है, वो आपके पास जो है वो एन है, और के आपके पास क्या है, आप इसमें से देखें कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सो दैट इज 5। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक एक्सिलरी, देखें एरे ए है तो उसके 8 एलिमेंट्स हैं, तो एरे बी है तो उसमें भी आपके पास 8 ही एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि हमारे पास इनपुट और आउटपुट जो है वो दोनों एग्जैक्टली सेम होगा। इनपुट अनसॉर्टेड, पॉसिबली अनसॉर्टेड होगा, और जो आउटपुट है वो बेसिकली सॉर्टेड होगा, सॉरी। सो आपने सी एरे लेना है, और सी एरे किस तरह से लेना है, आपने कहा कि मैक्सिमम के है, तो 0 से लेके के तक आपने इंडेक्स पे बेस जो है वो आपने एक ऑक्सिलरी एरे बनाना है। ठीक है, सो इसलिए 0 to 5 मीन 6 एलिमेंट्स का एक एरे आपके पास आ गया जिसको मैंने सी का नाम दिया है। अब इनिशियली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो इनिशियली मैं ये कहता हूँ कि आप इन सब वैल्यूज को 0 असाइन कर दें। ये इसके बाद मैंने 2 प्रोसेसेस किए हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो 0 0 0 0 0 और 0,
ये इसने यहाँ पे इसको असाइन कर दिया है, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, फॉर j इज इक्वल टू 1 to n, हमने क्या करना है, मैंने 1 to n जाना है इस एरे पे, ये मेरा j है, 1 से लेके मैंने j तक जाना है, और मैंने इस a ऑफ j की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। वो वैल्यू जो है वो बेसिकली क्या होगा, वो वैल्यू जो है वो c का आपको इंडेक्स देगा, और उस इंडेक्स लोकेशन पे जाके आप उसकी वैल्यू में से 1 को प्लस करेंगे। दिस इज व्हाट दिस वन विल बी डूइंग, राइट। सो अगर आप ये सबको यहाँ से स्टार्ट करें 0 0 0 0 0 और 0 से, तो मेरे पास फर्स्ट जो वैल्यू है वो क्या है, a ऑफ 1 की, वो है 2 वैल्यू। तो मेरे पास ये 2 जो है, यहाँ पे a ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, वो 2 है, तो c ऑफ 2 की वैल्यू, तो ये आपके पास c है और ये आपके पास 2 है, यहाँ की वैल्यू क्या है, वो 0 है। तो आप उस 0 वैल्यू को उठा लें, उसमें से जो है यहाँ पे 1 को ऐड कर दें, और फिर यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आप यहाँ पे उसको क्या कर दें, 0 को 1 से जो है वो रिप्लेस कर दें। फिर आप 2 वैल्यू पे चले जाएं, तो a ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, वो 5 है, तो आप चले जाएं, a ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, वो 5 है, तो आप यहाँ पे a 5 लिख दें, तो c 5 की वैल्यू पे आप चले जाएं, ये c है और ये 5 है, वो आपके पास जो है वो 0 है वैल्यू, तो ये कहता है कि उसमें 1 ऐड करें और फिर उसको दोबारा यहाँ पे जो है वो अपडेट कर दें, तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। फिर आपके पास a3 की वैल्यू जो है वो 3 है, तो c3 पे जाएं, ये 0 है तो ये 1 हो जाएगी। फिर a4 पे आप जाएंगे, a4 जो है वो 0 दे रहा है, तो c0 हो जाएगी, c0 पे जाएं तो आपके पास 0 वैल्यू है, तो वो 1 हो जाएगी। फिर आप जो है 5th पे जाएं, तो a5 जो है वो 2 वैल्यू आपको दे रहा है, और अब आप जो है ये c2 पे जाएंगे तो वहाँ पे 1 है, तो 1 आप ले लें और 1 में 1 ऐड कर लें, तो ये वैल्यू जो है वो आपके पास 2 हो जाएगी, ठीक है जी। इस तरीके से आप जो है वो a6 पे जाएं, तो वो वैल्यू आपको 3 मिलेगी, तो c3 पे जाएं, वहाँ पर आपके पास 1 वैल्यू है, तो वो 2 हो जाएगी। फिर आप 7 पे जाएं, a7 पे, तो वो 0 है, तो c0 यहाँ पर आ जाएगा, तो c0 की वैल्यू क्या है, वो 1 है, तो वो अगेन आपके पास जो है वो बाई 1 इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी। और फिर a8 की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 है, तो c3 पे आप चले जाएं, वहाँ की वैल्यू 2 है, तो वो आप अपडेट करते हैं विद 1, तो वो 3 हो जाएगी। अब अगर आप इस प्रोसीजर के बाद देखें यहाँ पे, इस वाले के बाद, तो आपके पास क्या है, यहाँ पर 0 की वैल्यू क्या है, वो 2 है, 1 की वैल्यू क्या है, वो 1 है, 2 की वैल्यू 2 है, 3 की वैल्यू 3 है, 4 की वैल्यू 0 है, और 5 की वैल्यू जो है वो क्या है, वो 1 है। सो इट मीन्स कि आपके पास अगर आप 0 को देखें, तो 0 इसमें कितने टाइम एग्जिस्ट कर रहा है, 2 टाइम। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज रिफ्लेक्टेड हेयर, कि आपके पास जो 0 है वो एक्चुअल इनपुट में कितने टाइम है, वो 2 टाइम है। आपके पास यहाँ पे 1 अगर आप देखें तो 1 कोई भी नहीं है, तो इसलिए जो 1 इंडेक्स है वहाँ पे वैल्यू 0 है। 2 जो है वो आपके पास 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो 2 के इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो क्या है, वो 2 है। 3 जो है वो 3 टाइम एग्जीक्यूट हो वो अपेयर हो रहा है, तो इसलिए इसकी वैल्यू 3 है। द 4 डजंट एग्जिस्ट, तो इसकी वैल्यू 0 है, और 5 एग्जिस्ट ओनली वंस, तो आपके पास इसकी वैल्यू 1 है। तो हमने ये काउंट कर दिया है कि 0 से लेके k तक जो वैल्यूज हैं, वो वैल्यू इस इनपुट के अंदर जो है वो कितने टाइम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है जी। सो ये इस लूप नंबर सेकंड का काम है जो j इज इक्वल टू 1 to n हमने यूज किया है। हम इस एग्जांपल में जो है ये थर्ड वन लूप जो है, इसको जो है वो एग्जीक्यूट कर लेते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे कहा है कि सेकंड लूप जो है उसने हमें ये डिटरमाइन करके दिया है कि जी हर एक वैल्यू जो कि इनपुट ए में जो है वो कितने टाइम एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम ये कहते हैं कि सेकंड वैल्यू से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आपका लूप 1 to k चल रहा है c के लिए। सो ये 1 से लेके k तक चल रहा है। हम क्या कर रहे हैं कि 1 के लिए हम 1 और जो 0 लोकेशन की वैल्यू है उन दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारा इस लूप के बाद, सेकंड लूप के बाद हमारा ये आउटकम है। सो दिस इज 0 एंड दिस इज 2, सो 2 plus 0 becomes 2 in here। इसका मतलब क्या है, अच्छा मैं कंप्लीट कर लूँ फिर यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर जब मैं i इज इक्वल टू 2 पे जाता हूँ, तो मैं 2 और 1 लोकेशन की जो वैल्यू है, अब अगर आप यहाँ पे देखें, सो यहाँ ये वैल्यू है जो कि 2 है, और अब यहाँ पे एडवांस जो वैल्यू है वो 2 है, तो 2 plus 2 is 4। इस तरीके से फिर जब 3 पे जाऊँगा तो 3 और सेकंड की वैल्यू, तो 3 plus 2 की वैल्यू, ये मैं ऊपर नीचे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें अपडेट हो रही हैं लेकिन वो मैंने नीचे लिखी हुई हैं, ठीक है।
तो ये जस्ट आपके रजिस्ट्रेशन के लिए है, ये ऊपर नीचे नहीं जा रहे हैं, बल्कि यही वैल्यूज अपडेट हो रहे हैं। ये वैल्यू जो है वो 0 + 2 ये 2 हो जाती है, ये 2 + 2 जो है ये 4 हो जाती है, ये 4 + 3 जो है ये 7 हो जाती है, यहाँ पे वो रिप्लेस हो जाती है, ये 7 + 0 जो है वो 7 हो जाती है, और 7 + 1 जो है ये 8 हो जाती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, हम ये कहते हैं, देखें 0 2 टाइम्स था हमारे पास, 1 जो है वो 0 टाइम था, तो हम ये कहते हैं कि 0 और 0 से स्मॉल, तो 0 से स्मॉल तो कोई वैल्यू है नहीं, तो हमारे पास कितने वैल्यूज हैं? 2 वैल्यूज हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कि 1 और 1 से स्मॉल हो, तो 1 तो 0 है, लेकिन 0 जो है वो 2 टाइम्स है, तो ये 2 टाइम है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि 2 और स्मॉलर देन 2, तो अगर आप देखें 2 टाइम्स जो है वो 0 है, और 2 टाइम्स जो है वो आपके पास 2 है, तो टोटल 2 और 2 से स्मॉलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो क्या है? वो 4 है। 3 और 3 से स्मॉलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो कितने हैं? वो 7 है, क्योंकि 2 जो है वो 2 टाइम्स जो है वो 0 है, 2 टाइम्स जो है वो 4 है, और 3 टाइम्स जो है वो आपके पास क्या है? वो 3s हैं। ठीक है जी। इस तरीके से 7 जो है, सॉरी 4 जो है वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, वो 0 है, लेकिन ये 0 और ये 7 मिलके जो है आपको क्या दे रहे हैं? आपको 7 दे रहे हैं। तो हम जब ये कहते हैं कि 3 और लेस देन 3 तो वो भी 7 है, और हम कहते हैं कि 4 एंड लेस देन 4 या लेस देन 4 तो वो भी 7 है, क्योंकि 4 की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस तरीके से 7 + 1 इट गिव्स यू 8, एंड इट मींस कि आपके पास 5 और लेस देन 5 कितने एलिमेंट्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपको दे रहा है 8 वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 5 और 5 हमारे पास क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है आपके इनपुट एरे के अंदर। ठीक है, सो 0 to k हमारे पास अगर आप देखें तो 8 हमारे पास टोटल वैल्यूज आ रहे हैं। ठीक है जी, हमने ये काउंट कर दिया है कि हमारे पास जो है वो हर एक वैल्यू से के इक्वल और उससे स्मॉलर जो है कितने वैल्यूज जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अब इस इंफॉर्मेशन को आगे हमने फाइनल जो लूप है उसमें हमने क्या करना है? उसमें हमने इस फाइनल स्टेज वाले को जो है वो यूटिलाइज करना है। तो ये चीज़ें, ये जो है दिस इज ऑब्सोलीट नाउ, राइट? सो नाउ वी आर हियर। अब देखें ए ऑफ जे। अब हमारा लास्ट लूप क्या है? हमने यहाँ से n से लेके जो 1 तक है एक लूप चलाना है, डिक्रीमेंटेशन का लूप हमने चलाना है, और इसलिए चलाते हैं क्योंकि जब हम इसको डिक्रीमेंटेड फॉर्म में लेंगे तो हमें स्टेबल अलगोरिथम मिलेगा। ये एक स्टेबल अलगोरिथम की प्रॉपर्टी देगी। स्टेबल अलगोरिथम क्या है वो मैं आगे जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ इस पॉइंट में, जब हम इस एग्जाम्पल को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। सो j is equal to n down to 1, n is equal to 8। सो आपके पास क्या है? a of 8 की वैल्यू कहाँ पे जाएगी? कहाँ पे जाना है? b में जाना है, लेकिन b के किस लोकेशन पे जाएगी वो हमें कौन सा डिटरमाइन करेगा? वो हमारे पास ये नेस्टेड सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल है a of j। यू गॉट टू नो कि आपके पास a of 8 की वैल्यू क्या है। सो दैट वैल्यू इज 3। 3 की वैल्यू कहाँ पे प्लेस होगी? तो आप देखें a of j की वैल्यू आपके पास 3 आ गई है, तो यहाँ से आपको c of 3 मिल जाएगा। दिस इज c एंड दिस इज 3, सो c of 3 की वैल्यू क्या है? दिस इज 7। सो आपके पास आ जाएगा b7। इसका मतलब यह है कि b7 में किस वैल्यू को प्लेस कर दें? वो 3 की वैल्यू जो है उसको प्लेस कर दें। सो हियर वी आर, दिस इज b एंड दिस इज 7, एंड दिस इज द 7th लोकेशन जहाँ पे कौन सी वैल्यू ने जाना है? इस वैल्यू ने जाना है। क्लियर? ये वैल्यू प्लेस हो गई, तो हमने अब क्या कर लिया है कि जो यहाँ पे हमारे पास ये c ऑफ जो 3 की वैल्यू थी, ठीक है जी, तो ये है c और ये है 3, उसको बाई 1 आप क्या करें? डिक्रीमेंट कर दें। ये देखें c a ऑफ j की वैल्यू क्या थी? वो a ऑफ 8 की वैल्यू वो 3 थी, सो c ऑफ 3 की वैल्यू उठा लें, उसमें से 1 को माइनस कर दें और उसको c ऑफ 3 पे जो है वो अपडेट कर दें। सो यू कैन सी कि c3 मैंने यहाँ अपडेट कर दिया, वो 7 से 6 आ गया। ठीक है जी, ये लूप टर्मिनेट, एक आइट्रेशन हो गया, दूसरे पे आएंगे। अब आप जाएंगे n-1 पे, तो n 8 था तो ये आ जाएगा 7 पे। सो a ऑफ 7 की वैल्यू क्या है? वो है 0। ठीक है जी, सो आप जाएंगे c ऑफ 0 के ऊपर, यहाँ पे ही आप जाएं तो बेहतर है, c ऑफ 0 के ऊपर, और c ऑफ 0 आपको क्या दे रहे हैं? c ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो है आपके पास 2। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या है कि आप c ऑफ 0 जो है वो 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा b ऑफ 2। तो आपने किस वैल्यू को 0 को कहाँ पे प्लेस करना है? b2 में। ये देखिए b2 है, और ये यहाँ पे मैंने इसको प्लेस कर दिया, और जो मेरे पास c0 की वैल्यू है उसको मैंने बाई 1 क्या कर देना है? डिक्रीमेंट कर देना है। मैं एक और वैल्यू को भी जो है वो प्लेस कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद बाकी आप खुद जो है वो कर सकते हैं। सो n-2 पे आ जाएंगे। 8 - 2 is 6,
तो A6 की वैल्यू क्या है, दैट इज 3। तो A3 की A6 की वैल्यू जो 3 है उसको आपने प्लेस करना है। सो C6 पे आप चले जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पे आप देखें, मैंने कहा कि हमने किस वैल्यू को प्लेस करना है, मैंने A6 की वैल्यू 3 को प्लेस करना है। तो इसके लिए मुझे C3 की वैल्यू मिलेगी, C3 से मुझे वैल्यू मिलेगी, तो ये C है और ये 3 है। तब मुझे कौन सा लोकेशन मिलेगा, अब 6 मिलेगा। देखिए मैंने क्या कहा था कि उसको डिक्रीमेंट क्यों करना है, वो इसलिए करना है क्योंकि मैं फिर 3 पे आया। अगर यहाँ पे ये 7 को मैं डिक्रीमेंट ना किया होता तो फिर मैं 7 पे प्लेस करता, जो कि गलत होता। तो अब वो प्रिजर्वेशन के लिए ये हम इसको डिक्रीमेंट कर रहे हैं। अब मेरे पास वैल्यू 6 आ जाएगी। सो C6 पे आप जाएंगे तो आपको जो है वो कौन सी वैल्यू, सॉरी C3 पे जो वैल्यू है वो 6 है, तो B6 पे आप जाएंगे और वहां पे आप किसको प्लेस करेंगे, आप 3 की वैल्यू को प्लेस करेंगे। और फिर आपने क्या करना है, C3 की जो वैल्यू है उसको बाई 1 डिक्रीमेंट कर देना है, ठीक है जी। आप इस तरीके से फिर आप A5 पे आएंगे तो 2 को प्लेस करेंगे, फिर A4 पे आएंगे 0 को प्लेस करेंगे, फिर 3 प्लेस करेंगे, फिर 5 को और फिर 0 को, और इस तरीके से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ दिस इज इजी, यू मस्ट नो इट कि हाउ यू नीड टू कंप्लीट दिस वन। एक चीज यहाँ पे है, आप देखें मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था और 3 मेरे पास 3 टाइम्स हैं। मेरा इनपुट नॉर्मली जो है वो लेफ्ट टू राइट है, लेकिन मैं इसको राइट टू लेफ्ट जो है वो प्लेस कर रहा हूँ। और ये जो मैकेनिज्म है जिसमें मैं लास्ट वैल्यू से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो देखें ये 3 की जो वैल्यू है ये सबसे 3 के मैक्सिमम पोजीशन पे मैंने प्लेस कर दिया, क्योंकि इस पे 8 के बाद 8 पे जो है वो 5 की वैल्यू ने आना है डेफिनेटली, अगर आप उसको देख लें। तो जो राइट मोस्ट एग्जिस्टेंस है 3 की वो सबसे मैक्सिमम लोकेशन पे चली गई, लेकिन 3 वैल्यूज हैं 5 से ग्रेटर, तो डेफिनेटली वो जो है वो 5, 6 और 7 लोकेशन पे ही आनी है। लेकिन आपके पास क्या है, ये जो 8 की वैल्यू थी ये 7 पे आ गई है, 6 की जो वैल्यू है वो 6 पे आ गई है, और ये जो थर्ड की वैल्यू है ये 5 पे आएगी। तो देखें ये 3 पहले आई थी, तो 3 सॉर्टेड सीक्वेंस में भी उसका सीक्वेंस फर्स्ट है। फिर ये सेकंड इसका एग्जिस्टेंस है, तो वो सेकंड लोकेशन पे आ गई है। इवन सॉर्टेड जो सीक्वेंस है वो उस सीक्वेंस में भी उस एग्जिस्टिंग या उस ऑर्डर ऑफ रिप्रेजेंटेशन को जो है वो मेंटेन कर रहा है। एंड दैट इज बेसिकली व्हाट वी कॉल द स्टेबल प्रॉपर्टी ऑफ एन एल्गोरिथम, कि अगर एक एल्गोरिथम इस चीज को कि जो इनपुट में जो ऑर्डर आपका जो है वो मेंटेन हो रहा है आपके आउटपुट में भी, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्टेबल एल्गोरिथम कहते हैं। तो यहाँ पर चूंकि ये चीज़ मेंटेन हो रही है, तो इसलिए आपके पास क्या है, ये काउंटिंग सॉर्ट जो है ये स्टेबल एल्गोरिथम है, ठीक है जी। दिस वाज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ द काउंटिंग सॉर्ट, कि काउंटिंग सॉर्ट जो है वो क्या है और वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम उसको जो है वो डिस्कस कर लेते हैं एनालिसिस को, ठीक है जी। अब एक चीज़ यहाँ पे जो है वो इम्पोर्टेंट है, अगर आप यहाँ पे देखें टू लूप्स जो हैं वो 0 से k तक यूज़ हो रहे हैं, और जो टू लूप्स हैं वो 1 to n तक जो है वो यूज़ हो रहे हैं। So n plus n becomes 2n and this k plus k becomes 2k. So in asymptotic notations we can always talk about this in terms of only 1k and k, क्योंकि वो 2n में से जो आपका constant coefficient है उसकी कोई जो है वो significance नहीं होती, वो आगे हम जाके उसको देख लेते हैं, ठीक है। एनालिसिस क्या है, हमने कहा थीटा ऑफ n plus k, n plus n plus k plus k, so k plus k becomes 2k and this becomes 2n, so वो 2 और 2 यहाँ से कट जाएगा, this is n plus k which is theta of n। अगर हमारे पास जो है वो k की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम क्या हो सकती है, वो n हो सकती है। दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि आपके पास n एलिमेंट्स हैं और आपके पास जो k की वैल्यू है वो बेसिकली मैक्सिमम उसकी जो वैल्यू है वो n के इक्वल है। तो अगर इनके इक्वल है, अगर k जो है वो इनके इक्वल हो जाता है, तो ये k जो है ये n से रिप्लेस हो जाएगा, ये फिर अगेन आपके पास क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो ये आपके पास जो इसका टाइम है वो क्या आ जाएगा, वो थीटा ऑफ n आ जाएगा, जो कि लीनियर आपके पास लीनियर फंक्शन है, ठीक है जी। अब हाउ बिग अ k वैल्यू इज प्रैक्टिकल, so good for sorting 32 bit values, तो हम कहते हैं नो दिस इज क्वाइट अ बिग वैल्यू, सो we cannot do it for that। 16 bit हम कहते हैं probably we cannot do that as well, because 16 bit is a very big value as well, 2 raised to power 16 gives you a very huge value। लेकिन अगर हम 8 bit की बात करें तो 2 raised to power
age is basically something like uh, a value which is 248 or 512 in that case, ठीक है। so maybe हम कह सकते हैं, लेकिन it depends on n के, n की वैल्यू जो है वो बेसिकली आपके पास क्या है 4 बिट, तो हम कहते हैं yes probably unless n is really small, अगर n की वैल्यू स्मॉल है तो आप yes it could be used over there, right। अब जैसे मैंने कहा था कि इस काउंटिंग सॉर्ट को जो है वो फर्दर हम फिर एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंशन का मतलब ये है कि अभी हमने इसकी वैल्यूज जो हैं, अगर वन डायमेंशनल वैल्यूज दी है तो अब हम मल्टी डायमेंशनल वैल्यूज की तरफ अगर मूव करें, जो कि रेडिक सॉर्ट जो है उसको प्रोसेस कर रहा होता है, तो वहां पर हम काउंटिंग सॉर्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। सो काउंटिंग सॉर्ट जो अभी हमने डिस्कस किया, इसको हम जो है वो आगे रेडिक सॉर्ट में यूटिलाइज करते हैं। रेडिक सॉर्ट जो है इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन ये कहाँ पे था, कैसे था, कुछ अगर हम हिस्ट्री में चले जाएं तो बेसिकली ये मल्टी कॉलम डेटा के ऊपर जो है वो सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकता है। IBM मेड इट्स मनी थ्रू पंच कार्ड बेसिकली क्या है, बिफोर द कीबोर्ड्स एंड ऑल दीज काइंड ऑफ इनपुट डिवाइसेस वी यूज्ड टू हैव अ कार्ड, जिसमें आप जो है जिस तरीके से आजकल आपका NTS के ये टेस्ट होते हैं जिसमें आप जो है वो जो सर्कल्स होते हैं उनको जो है वो कलर करते हैं। सो कलर मींस वन वैल्यू एंड नॉन कलरिंग और एम्प्टी सर्कल मींस द ज़ीरो वैल्यू। सो वहाँ पर भी हम इसी तरीके से पंच करते होते थे कि एक होल जो है अगर वो एग्जिस्ट होता था तो आप उसको जो है एज ए वैल्यू लेते थे और अदरवाइज आप उसको जो है वो स्किप कर लेते थे, ठीक है जी। सो पंच कार्ड रीडर्स जो है ये ऑब्वियसली इट्स विद IBM सिस्टम्स इन अर्ली सिस्टम्स जो कि हमारे पास यूटिलाइज होते थे, ठीक है जी। सिंसेस टेबुलेशन के लिए और ये अर्ली 90s में हमारे पास हैं कार्ड सॉर्टर्स हैं। इवन अगर आप देखें तो हमारे एनीवेज दिस कार्ड सॉर्टर्स बेसिकली वर्क्स ऑन वन कॉलम एट अ टाइम, लेकिन इसके एग्जांपल को अगर आप देखें तो आप बेसिकली ये पोस्ट ऑफिस वाला एग्जांपल भी ले सकते हैं, जहां पर जब एक सिटी के सारे लेटर्स आते हैं वो एक मेन हब पे पहुंचते हैं, तो वहां से फिर उनकी सॉर्टिंग होती है और वो सॉर्टेड जो है सपोज डिविजनल लेवल पे आता है तो उसमें से फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के वो सारे सॉर्ट जो हैं वो सॉर्ट हो जाते हैं, वो फिर डिस्ट्रिक्ट पे चले जाते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो जो है ना तहसील लेवल पे उसको जो है वो सॉर्ट कर लेते हैं। सो वन बाय वन पैरामीटर जो है वो आप यूटिलाइज करते होते हैं एंड अल्टीमेटली ईच लेटर जो है इट रीचेस टू द कंसर्न पर्सन, ठीक है जी। सो वो किस तरीके से जो है वो प्रोसेस हो रहा होता है, इट्स एग्जैक्टली द सेम वे एज वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर, लेकिन यहाँ पर हम इसको नंबर्स के थ्रू या वैल्यूज के थ्रू जो या वैल्यूज के ऊपर जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है जी। So it's basically an algorithm for using the machine that extends the technique to multi-column sorting, right? इस तरीके से अभी हमने वैल्यूज वहाँ पे ली थी, तो हमने 0 1 2 3 अप टू 5 और 9 10 वैल्यूज या 9 तक जो है वो वैल्यूज ली थी, उसमें एक डिजिट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है जी। सो हमारे पास यहाँ पे क्या है, अगर आप इवन जो है वो वैल्यूज को देखें जो कि हमारे पास नंबर्स होते हैं, सो वो नंबर्स जो है दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ, अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो बेस्ड ऑन 10 डिजिट्स जो कि 0 से लेकर 9 तक ही होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी डेट्स हैं, ईयर्स हैं या डेट वाइज इंफॉर्मेशन है, टाइम वाइज इंफॉर्मेशन है, वो हमेशा जो है वो 0 और 9 के वैल्यूज़ पे कॉम्बिनेशन से ही जो है वो बनता है आपके पास, ठीक है जी। तो अगर हमारे पास मल्टी कॉलम इस तरह का डेटा हो तो हम रेडिक सॉर्ट जो है वो बेसिकली सिंगल कॉलम से मल्टी कॉलम डेटा के ऊपर जो है वो हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ह्यूमन ऑपरेटर जो है इट वाज बेसिकली पार्ट ऑफ एन एल्गोरिथम एज वेल, क्योंकि उसने वो सॉर्टिंग जो परफॉर्म करनी थी वो किस जो है वो सीक्वेंस से परफॉर्म करनी थी। लेकिन एनीवेज नाउ वी हैव द मॉडर्न एरा, और हम यहाँ पे जो है हमारा जो की आइडिया है वो क्या है कि मल्टी कॉलम डेटा को हमने कॉलम वाइज जो है वो सॉर्ट करना है। अगर हमारे पास मल्टी कॉलम डेटा है और हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट हमने करना है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से। ये एग्जैक्टली ऐसे ही है जिस तरीके से हमारे पास नंबर्स हैं, तो अगर आप देखें तो नंबर्स हम लिखते हैं तो लेफ्ट टू राइट है, लेकिन उनके वैल्यूज जो है वो राइट टू लेफ्ट जो है उनके वेट्स जो है या उनके वैल्यूज या उनके वेट्स जो है वो लोकेशन वाइज या प्लेस वाइज जो है वो असाइन होते हैं। तो जो राइट मोस्ट सबसे पहला एलिमेंट होता है उसको हम यूनिट्स कहते हैं, फिर दूसरे को हम टेंस कहते हैं, दूसरे को उसके बाद जो है उसको हम जो है वो हंड्रेड्स कहते हैं, फिर 10,000 कहते हैं और इस तरीके से एंड सो ऑन, राइट।
So this is basically based on a formula which we call 10 raised to the power 0, 10 raised to the power 1, 10 raised to the power 2, 10 raised to the power 3 and so on, right? So right to left हम move करते हैं 10 raised to the power 0, it gives you a value 1, which means कि आप यूनिट डिजिट की बात करते हैं या आप यूनिट्स की बात करते हैं, और यूनिट जो है वो 0 से लेकर 9 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। जब आप टेंस पे जाते हैं तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिजिट्स, और वो 2 डिजिट्स जो है वो क्या है, वो 0 से 9 तक ही है। तो आपके पास जो रेंज बनता है वो 00 से लेके 99 तक होगा। इफ यू एड द थर्ड वैल्यू मींस द हंड्रेड्स वैल्यू, तो फिर आपके पास जो है वो अगेन 3 नंबर्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो भी बेस करते हैं उन्हीं 0 to 9 नंबर्स पे बेस, ठीक है जी। सो रेडिक्स सॉर्ट जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है, अगर आपके पास मल्टी कॉलम डेटा है तो टू सॉर्ट डी डिजिट्स, जो आपके पास डी डिजिट्स गिवन है, ये आपका प्रोसीजर है। ए जो है वो आपका जो है वो एरे है, और डी उसमें डायमेंशन है। डायमेंशन मींस कि हाउ मेनी कॉलम्स डू यू हैव इन द डेटा which you have to process. So हमने क्या करना है, for I is equal to 1 to n, और ये 1 to n क्या है, least significant towards the most significant information है। तो सिंपली आप ये लूप चला रहे हैं, और ये लूप क्या कर रहा है कि आप कॉलम वाइज जो है उसके ऊपर ये नीचे कोई भी जो स्टेबल एल्गोरिथम है, स्टेबल सॉर्ट एल्गोरिथम है, उसको आप अप्लाई करें। तो अभी हमने काउंटिंग सॉर्ट को डिस्कस किया है, हम ये कहते हैं कि जी दैट्स बेसिकली अ स्टेबल सॉर्ट एल्गोरिथम। तो यहाँ पर हम कॉलम वाइज जो है वो उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और हमारे पास वो जो है वो मल्टी कॉलम डेटा को जो है भी वो सॉर्ट कर सकता है। और इस एक्सटेंशन ऑफ द काउंटिंग सॉर्ट जो है या किसी भी स्टेबल सॉर्ट का जो एक्सटेंशन है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम रेडिक्स सॉर्ट कहेंगे। सो लेट्स हैव एन एग्जांपल। This is an example. If you look in here, this is what I said, this is the least significant digit or the least significant position, जो कि यूनिट वैल्यू होती है। दिस इज टेंस वैल्यू, दिस इज हंड्रेड्स वैल्यू। तो ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, और ये आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। हमने वहाँ पे एक लूप चलाया है, दीज आर द वैल्यूज जो कि हमें गिवन है, जिसको हमने सॉर्ट करना है। तो हम ये कहते हैं कि इसमें कितने डायमेंशंस हैं, कितने कॉलम्स हैं, 1 2 एंड 3। तो इनिशियली हमने क्या करना है, हमने इन वैल्यूज के ऊपर जो स्टेबल एल्गोरिथम है उसको अप्लाई कर देना है। फिर हमने दूसरे कॉलम के ऊपर उसके वैल्यूज के ऊपर अप्लाई करना है। फिर तीसरे कॉलम के ऊपर जो है वो हमने वैल्यू जो एल्गोरिथम है काउंटिंग सॉर्ट का, वो हमने अप्लाई करना है, ठीक है जी। अब एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि जब वो इस कॉलम के ऊपर डेटा को जो है वो काउंटिंग सॉर्ट को अप्लाई कर देते हैं, तो वो जस्ट इन वैल्यूज़ को जो है वो स्वैप कर लेते हैं। मीन्स ये 0 की वैल्यू सबसे टॉप पे चली जाएगी, 1 की वैल्यू सेकंड पे चली जाएगी, 2 नहीं है तो 3 की वैल्यू थर्ड पे चली जाएगी, फिर 4, और इस तरीके से। लेकिन हमारा कंसर्न क्या है, हमारा कंसर्न हमें इनपुट ये सारे वैल्यूज़ गिवन है, तो हमने इन वैल्यूज़ को जो है वो क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो हमने ये नहीं करना कि हमने जस्ट 0 को यहाँ पे स्वैप कर देना है, बल्कि हमने सारी की सारी वैल्यू को स्वैप कर देना है, ठीक है। दैट शुड बी क्लियर। सो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इस डेटा के ऊपर जो है वो आप अप्लाई करें काउंटिंग सॉर्ट। काउंटिंग सॉर्ट कैसे होगा, 0 से लेके आपने 8 तक जो है वो एक सी एरे लेना होगा, और फिर ये वाला जो है वो प्रोसेस हो जाएगा। सो एग्जैक्टली द सेम वे जो हम पिछले डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा, सबसे पहले 0 तो ये 690 ऊपर चला जाएगा, फिर 1 सेकंड लोकेशन पे चला जाएगा। डिसीजन हमने इस पे लेना है, लेकिन वैल्यूज हमने सारे स्वैप करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू ये आ गई, 750 की वैल्यू ये आ गई है। उसके बाद 2 की वैल्यू नहीं है तो नेक्स्ट वैल्यू में 3 ने जाना है, तो 453 की वैल्यू चली जाएगी। उसके बाद 4 की वैल्यू है तो 704 की वैल्यू जाएगी। उसके बाद जो है आपने 5 पे जाना है। देखें हमने चूंकि स्टेबल सॉर्ट लेना है, तो हमारे पास क्या होगा, पहले वैल्यू ये जाएगी और उसके बाद ये वाली वैल्यू जाएगी। उसके बाद 6 है तो 326 की वैल्यू नेक्स्ट चली जाएगी, और इस तरीके से 608 की वैल्यू जो है वो लास्ट चली जाएगी। So this is basically the sorted sequence just on the basis of the least significant column, ठीक है जी। तो इसके ऊपर हमने इसको जो है वो प्रोसेस कर लिया। तो ये एक स्टेप हो गया। फिर फॉर लूप जाएगा, फिर जो फॉर लूप है उसके डी की वैल्यू भी सेकंड डायमेंशंस मीन सेकंड बिट के ऊपर या सेकंड डिजिट के ऊपर आपके पास जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो अब आप यहाँ के ऊपर अप्लाई करेंगे तो दिस इज 0 एंड दिस इज 0। ये 0 पहले है तो 704 आ जाएगा, फिर 608 आ जाएगा। फिर इसमें से देखिए 2 की वैल्यू है तो 3 ये वैल्यू चली जाएगी। फिर 835 और 435 चली जाएगी। फिर जो है इसमें अगर आप 5 और 5 देखें तो 751 और 453 चली जाएगी।
और उसके बाद 9 की वैल्यू मीन 690 जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब हमारे पास ये डेटा जो है ये फर्स्ट और सेकंड के ऊपर जो है वो सॉर्टेड है, लेकिन ये ओवरऑल सॉर्टेड नहीं है। ओवरऑल सॉर्टेड तब होगा जब हम इसके ऊपर भी जो है वो स्टेबल सॉर्ट जो है, काउंटिंग सॉर्ट जो है वो अप्लाई करेंगे। तो अब आप इसके ऊपर देखें तो सबसे मिनिमम जो वैल्यू है वो डेफिनेटली सबसे टॉप पे जाएगी, एंड दैट वैल्यू इज 3। सो 326 वैल्यू शुड बी ऑन टॉप। उसके बाद क्या है, उसके बाद 4 की वैल्यू है 435 है। देखिए ये देखिए वही जो है वो मेंटेन हो रहा है, 435, फिर 453, फिर उसके बाद 608, फिर 704, 751 और फिर उसके बाद जो है वो 835। इफ यू लुक एट दिस, ये सबसे मिनिमम, ये उसके बाद सेकंड मिनिमम, थर्ड मिनिमम, फिर फोर्थ वन, फिर फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड एट, एंड वी आर ऑलरेडी सॉर्टेड हियर। नाउ लेट्स हैव द एनालिसिस ऑफ रेडिक्स सॉर्ट। Assume that we are using counting sort as the intermediate sort, means हमने रेडिक्स सॉर्ट में ये नहीं कहा कि हमने काउंटिंग को ही यूज़ करना है, हमने वहाँ पे कहा कि किसी भी स्टेबल सॉर्ट के एल्गोरिथम को, किसी भी स्टेबल सॉर्ट को आप यूज़ करें। लेकिन चूंकि हमने काउंट को यूज़ किया तो अभी हमारा जो एनालिसिस होगा वो भी काउंटिंग सॉर्ट के परस्पेक्टिव से ही होगा। तो हमारे पास क्या है, कितने पासेस, कितना टाइम हमारा पर पास लगना है, तो हम ये कहते हैं कि n प्लस k टाइम लगेगा, क्योंकि डिजिट्स इन रेंज हमारे पास कितने हैं, वो 0 to k है। ठीक है जी। और हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे पास कितने पासेस हैं। पासेस का मतलब ये है कि जो रेडिक्स सॉर्ट का फॉर i इज इक्वल टू, फॉर d इज इक्वल टू 1 to 3 है आपके पास। ठीक है जी। सो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जितने डायमेंशंस हैं, तो ये डायमेंशंस की बात हो रही है। ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा, d इंटू n प्लस k हो जाएगा यहाँ पर, दिस इज द टोटल टाइम। अगर हम ये कहते हैं कि जो k की वैल्यू है, अगर वो k की वैल्यू जो है वो बेसिकली मेरे पास क्या है, मैक्सिमम वो n के इक्वल हो सकती है, तो वो बिग ऑफ n हो जाएगा। तो ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा, ये भी मेरे पास n आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस n हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा। सो 2dn हो जाएगा, और 2 जो है वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, वो कभी भी जो है वो हमारे पास जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन है उसमें हम यूज़ नहीं करते। तो इसका जो टाइम है वो क्या है, वो d इंटू n है, एंड d इज़ वेरी स्मॉल वैल्यू। तो इसलिए ये n के इक्वल कभी हो ही नहीं सकता। सो इसलिए आपके पास जो है ये dn ही है, और dn जो है वो भी बेसिकली क्या है, ये भी बेसिकली लीनियर ही है। इट्स डिपेंड्स कि d की वैल्यू जो है वो बेसिकली आपके पास। ओके डियर, तो मेरे ख्याल में हमने आज के लेक्चर में सबसे पहले लोअर बाउंड ऑन कंपैरिजन सॉर्ट्स जो है वो डिस्कस किया कि अगर हम सॉर्टिंग परफॉर्म करें जिसमें कंपैरिजन इन्वॉल्व है तो मिनिमम हमारे कितने कंपैरिजन जो है रिक्वायर्ड हैं। तो हमने कहा कि जी वो n log of n टाइम ले रहा है। तो फिर हमने ये कहा कि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम इससे बेहतर टाइम ले लें। तो हमने कहा कि जी अगर हम कंपैरिजन की बजाय जो है कोई और मैकेनिज्म की बजाय कोई और टेक्निक यूज़ करें, तो हमने यहाँ पे जो है वो बेसिकली नंबर्स को काउंट करना शुरू कर दिया है, और काउंटिंग के थ्रू हमने देखा कि काउंटिंग सॉर्ट का जो टाइम है वो लीनियर पे आ गया, और फिर उसके बाद हमने रेडिक्स जो है उसका टाइमिंग जो है वो भी कैलकुलेट कर लिया, तो वो भी हमारे पास लीनियर था। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि काउंटिंग सॉर्ट जो है वो n log of n से मिनिमम नहीं जा सकता। अगर हमने मिनिमम जाना है तो हमें कोई और टेक्निक चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे एक टेक्निक को अप्लाई किया है, उसको हमने काउंटिंग का जो है कि आप काउंटिंग करते जाएं। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लीनियर टाइम सॉर्टिंग जो कि हमने कवर करना था। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे असाइनमेंट है, आप इसको ले लें और इसको जो है वो आप क्या करें, इस पर काउंटिंग सॉर्ट और रेडिक्स सॉर्ट जो है आप अप्लाई करें। फर्स्ट पार्ट कहता है कि जी आप 4 2 3 2 4 0 ले लें, और इसका स्टेप बाय स्टेप रिस्पांस जो है वो जनरेट करें जब इस पे इसके ऊपर आप काउंटिंग सॉर्ट को अप्लाई करें। और वैल्यूज़ गिवन है 125 245 526 712 और 910। आप इसके ऊपर जो है वो रेडिक्स सॉर्ट को जो है वो आप अप्लाई करें, और हर स्टेप का जिस तरीके से यहाँ पे हर एक डायमेंशन का हमारे पास जो रिस्पांस आ रहा था, तो आप उसी तरीके से इसको जो है वो उसका आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर लें। सो ये आप करके जो है वो जो टाइम वहाँ पे गिवन है आप तब तक जो है इसको वहाँ पे सबमिट कर लीजिएगा। ठीक है जी। मेरे ख्याल में आज के लिए जो है इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक जो है वो न्यू टॉपिक के साथ जो है वो नई डिस्कशन ग्राफ के ऊपर हमारी होगी, तो हम ग्राफ थ्योरी जो है उसको स्टार्ट कर रहे होंगे। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ गुड डे।